Let us talk about the cell theory at first. Okay, we will try and talk about the cell theory at first. So today when we try to talk about the cell theory, the first question that arises, or the first question that is asked from cell theory, that is who proposed the cell theory. The name of the scientist who proposed the cell theory is Rudolf Virchow and other two scientists. Rudolf Virchow तो बाद में आता है. Other Matthias Sheldon and Theodor Schwann. Okay, Matthias Sheldon and Theodor Schwann इस स्पेलिंग्स जो है ये बुक से थोड़ा देख लेना, अपने हिसाब से लिखने का कोशिश मत करना, जर्मन साइंटिस्ट है, ठीक है. थियोडोर THEODORE, थियोडोर. श्वान SCHWANN. Matthias Sheldon Matthias MATTHIAS, Matthias Sheldon SCHEILDEN. बाद में अगर बुक में मिल ही जाएगा, नहीं तो मेरे वीडियो से लिख लेना स्पेलिंग, ठीक है. Matthias Sheldon, Theodor Schwann, and then comes Rudolf Virchow. In the year 1839, you can say that in the year 1839, Matthias Sheldon was a botanist. As because he was a botanist, he said that he talked about plants and he said that all the plants are made up of cells. Theodor Schwann was a zoologist. What is zoology? Study of animals. What is botany? Study of plants. What is microbiology? Study of microorganisms. What is cytology? Study of cells. Both the eyes, please. Both the eyes. Again, again, once more. Once more. Superstition just got recorded. So, what was I saying? I was talking about. I asked you that what do you mean by cytology? So, cytology is the study of cells. What is histology? Study of history. Histology is study about tissues. Okay. What is anatomy? No. Study of the structure of living organisms. Internal structures of living organisms is anatomy. What is morphology? Study of the external structure of living organisms. Are you getting my point? That is morphology. What is ornithology? Study of bones. Study of women's. You want to study women? Bones? No. Ornithology is study of birds. Okay. So some people I find sometimes they are very interested in this one terms. Some of you might be very interested. You can keep searching in Google, keep collecting facts about this. In concise it's there. He is right. In concise it's there. A lot of study of this and study of there is there. Anyway, so we were talking about cell theory. So cell theory, the botanist was who? Matthias Sheldon. And Theodor Sheldon was what? Zoologist, not zoologist. Geology is what? Geology is study of earth and all those things. That is geology. Archaeology is study about the, architecture. No, not architecture. The, जो गड़ा हुआ है, अरे जो एंशियंट चीज गड़ा हुआ है उसको निकालते हैं ना, वो आर्कियोलॉजी है. फॉसिल्स, स्टडी ऑफ दैट ऑल थिंग्स. एनीवे, सो इधर से उधर घूम गया था स्टडीज, लेकिन अभी थोड़ा पॉइंट पे आते हैं. तो पॉइंट ये है कि जो बॉटनिस्ट था वो प्लांट के बारे में बोला कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जो जूलॉजिस्ट था, जूलॉजिस्ट, ZOOLOGIST, जूलॉजी, ZOOLOGY, ये गलती मत करना. नॉट जियोलॉजी. GEOLOGY इज समथिंग एल्स. जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स. तो जो जूलॉजिस्ट था वो उसने बोला कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. दोनों का स्टेटमेंट मिला और बोला गया कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स.
ठीक है। उसके बाद रुडोल्फ वर्चो ने बताया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, उसने अपने लैंग्वेज में बताया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मीनिंग ढूंढोगे तो मीनिंग समझ में आएगा कि द सेल्स और द न्यू सेल्स आर ऑलवेज अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स ही वांटेड टू से कि द सेल्स आर ऑलवेज फॉर्मिंग ड्यू टू द सेल डिविजन ऑफ द प्रीवियस सेल्स। This also comes under cell theory. But remember, do you think the first cell on earth was formed by cell division? तो उसके पहले वाला सेल कहाँ से आया था? ओके, दैट वाज, उसने मैंने तुम लोगों को तुम्हारे ही अनजाने में मिलर्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा दिया है। मैंने बोला था ना कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे, वो एक साथ आए थे और पहला सेल बना था, फिर एवोल्यूशन होके और इम्प्रूव्ड सेल्स बन के हम लोग आए हैं, और एवोल्यूशन का कोर्स पूरा बताया था मैंने, राइट और रॉन्ग। तो लेकिन हाँ, सेल थ्योरी में ये बताया जाता है रुडोल्फ वर्चो द्वारा कि देखो भाई, क्या कहते हैं उसको, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स आर अराइजिंग ऑलवेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट सेल्स। लेकिन ये उसने कब बताया, 1855 में। और मिथियस शेल्डन और थियोडर श्वान कब दिया, 1839 में। इज दिस क्लियर टू यू? अच्छा, अब बात ये है कि ये जो सेल थ्योरी का दो पॉइंट है ना, कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स और ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट द सेल्स आर व्हाट कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, सेल्स आर, ये 2 पॉइंट मेनली लिखा जाता है। मेन, अगर कोई तुमको बोलेगा कि राइट डाउन द सेल थ्योरी, ट्रिक करके दे दिया 2 मार्क्स, ये ट्रिक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सेल थ्योरी इतना सारा पढ़ते हैं, क्योंकि अभी जो सेल थ्योरी पढ़ाया जाता है उसमें 4-5 पॉइंट पढ़ा दिया जाता है। द सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऑल न्यू सेल्स रिजल्ट इज द डिविजन ऑफ प्रीवियस सेल्स। ये 2 तो था ही, ठीक है। द सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इनसाइड द सेल देयर आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड केमिकल रिएक्शंस दैट आर गोइंग ऑन which carries out the functions of the life. Then there is the function of the whole function of an organism as an outcome of the combined activities of the cells which forms that organism. Then cell is the structure and functional unit of life. कितने सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं, जो मैंने इधर उधर करके तुम लोगों को इससे पहले समझाया था, उन्हीं पॉइंट्स को एक साथ करके बता सकते हो। लेकिन अगर 2 मार्क्स दिया तो इतना लिखोगे नहीं। 2 मेन पॉइंट्स लिखना है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है, 2 वही पॉइंट्स लिखना है जो साइंटिस्ट्स ने दिया था। तो मिथियस शेल्डन और थियोडर श्वान ने क्या बताया था, उसका स्टेटमेंट भी याद रखना है। मिथियस शेल्डन ने अलग से क्या बताया था, थियोडर श्वान ने अलग से क्या बताया था, कब बताया था, ठीक है। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं। 1839 में मिथियस शेल्डन ने और थियोडर श्वान ने अलग अलग इंडिपेंडेंटली, दोनों कॉलिग थे लेकिन इंडिपेंडेंटली बताया ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल, ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। बाद में दोनों स्टेटमेंट को एक साथ में लाया गया और बोला गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने बोला, ठीक है, 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने बोला कि क्या बोलते हैं उसको, the cells, all cells arise from pre-existing cells, ठीक है। इसका मतलब वो बोलना चाह रहा था कि सेल डिवीजन होकर सेल्स आ रहा है। तो मेन 2 पॉइंट्स तो यही हुए। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, राइट डाउन द एक्सप्लेन द सेल थ्योरी, राइट डाउन एक्सप्लेन द सेल थ्योरी, तब भी 5 पॉइंट्स ही लिखोगे। 5 पॉइंट्स अब क्या लिखोगे, 2 पॉइंट्स तो यहाँ से बन गए। 3 नंबर पॉइंट क्या लिखोगे, द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। 4 नंबर पॉइंट क्या लिखोगे, द टोटल आउटकम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, of a multicellular organism is the constituent outcome of all the cells that forms its body, right or wrong? 5 नंबर पॉइंट क्या लिखोगे, 5 नंबर पॉइंट लिख सकते हो कि inside the cell there is always chemical reactions going on which are actually the metabolic processes or the life processes which is required to carry out life. The life processes include nutrition, excretion, respiration and reproduction. लिख सकते हो, हो गया 5 पॉइंट। आया समझ में? मैंने तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो में ये भी समझाया है कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, समझाया है ना। इतना भी समझाया है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, इतना भी समझाया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मतलब बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, और उसमें एंजाइम्स का क्या इंपॉर्टेंट है, समझाया कि नहीं समझाया। जीन्स का इंपॉर्टेंट समझाया गया है,
समझाया गया कि नहीं समझाया गया कि जीन्स क्या होता है, GENES, जीन्स क्या होता है, जीन्स का इंपॉर्टेंट समझाया गया है कि जीन्स कहाँ रहता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर जीन्स रहता है, उससे प्रोटीन बनता है, उसी से कैरेक्टर बनता है। ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं, वीडियो में रिकॉर्डेड है, फिर से जाकर देख सकते हो, ये फिर याद आ जाएगा। अब बात ये है, क्या तुम लोगों को मैंने ये बताया कि दुनिया में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? नहीं, अमीबा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आएगा सबसे छोटा सेल।